we were doing the diodes. Already we have seen diode as a rectifier. Then optoelectronic diodes we have done, which deals with the photon. And first one was photodiode. It is used to detect the signal, particularly in optical communication. Now we'll see another optoelectronic diode, which is the LED light emitting diode. ये है light emitting diodes you have seen. They are used in the remote controls, optical communication, display boards, bulb, etc. आजकल LED bulbs भी हैं, ट्यूबलाइट्स भी हैं, and remote में भी that front side में small छोटा सा वो transparent covering, transparent रहता है ना, that is the diode which emits the infrared radiation which we cannot see. All right, so diodes are very extensively used nowadays. They have the many advantages. They can be operated in less voltage, power consumption is less, and so on. So they are very heavily doped PN junction, which under the forward bias emits spontaneous radiation. It means they are used in the forward bias. Forward bias में use करते हैं उनको, but they are heavily doped. It is encapsulated with the transparent cover because light has to come out, or even other radiation has to come out. So they have to be used in transparent covers. ठीक है? When we do the forward biasing, जब उनको forward biasing करते हैं, तो melodic carriers will move to the other side, and where they will meet with each other and emit the radiation. Let's see further. When they are forward biased, electrons move from N side to P side and hole from P to N. Melodic forward biasing में melodic carrier से movement होता है. And when they move other side where they are in magnetic carriers, दूसरी side में वो कम है. Hence there are excess magnetic carriers near the junction. Junction को जब cross करेंगे, they will come to the side where they are in magnetic carriers, and near the junction they are getting accumulated, where they will combine with the magnetic carriers. दूसरी side में magnetic carriers है, वहां पे combine करेंगे उसमें, and on recombination the energy is released. जब वो combine करते हैं near the junction, they will release the energy in the form of photon. It may be in visible range. अब light bulb में क्या होता है, visible range में आएगी, तो they will emit the light, है ना? Or it may be in the invisible range like remote controls, है ना? वहाँ पे हम we cannot see, but they will be in infrared radiation, but they will do their job. ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? They move across the junction, majority carriers, है ना? Electron from N side will come to the P side, है ना? वहाँ पे combine करेंगे hole के साथ, and holes will come to the N side, वो electron के साथ combine करके they will emit the energy in the form of photon. Photons emit करते हैं. जो photodiode थे photon detect करते हैं, ये emit करते हैं. क्या होगा देखो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में अगर हमने इनको यूज किया, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में से दे विल सेंड द सिग्नल. ये ऐसा इस तरह से, कैन यू सी, इट इज इंडिकेटेड लाइक दिस, which is sending the signal to the optical fiber.
वहां पे TIR से इट विल प्रोपेगेट एंड इधर फोटोडायोड उनको डिटेक्ट करेगा. फोटोडायोड में एरो इनवर्ड होंगे, इसमें एरो आउटवर्ड है बिकॉज इट इज इमिटिंग द फोटोन. फोटोडायोड इज receiving the incoming photons. Okay? So LEDs are used in optical communication and up and other places. ठीक है, can you see it? तो VI characteristics of LED is similar to that of silicon junction diode, but threshold voltage much higher than the breakdown voltage of LEDs. Threshold voltage are higher, but breakdown voltage जो reverse का जो voltage था are very low, as around 5 volt only. तो ये देखो यहाँ पर देखो इसका LED का फॉरवर्ड बायस ऐसा होगा. ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है दिस विल बी हायर, है ना, मच हायर. सिलिकॉन में कितना था 1.1 EV था, है ना, बट इट विल बी मच हायर. बट ब्रेकडाउन वोल्टेज इधर का ये 5 वोल्ट ही रहेगा इसमें. सो प्रिकॉशन शुड बी टेकन, दे शुड नॉट बी रिवर्स बायस. रिवर्स बायस हो गए तो खराब हो सकते हैं. ठीक है, गॉट इट. तो फॉरवर्ड बायस अगर पूछेंगे तो ऐसा ड्रॉ करना है. वैल्यूज छोड़ सकते हैं बट फॉरवर्ड बायस का ऐसा. गॉट इट. And for red color LED light emitting diode, gallium arsenide phosphide is used, whose energy gap is 1.9 EV. 1.9 EV के corresponding अगर हम lambda निकालें, EV is equal to HC by lambda. Lambda is equal to HC by EG. तो इससे आपका वेवलेंथ जो है रेड कलर का नियरली 700 नैनोमीटर आ जाएगा. Got it. If for infrared radiation, gallium arsenide, whose band energy gap is 1.4 EV is used. एनर्जी गैप और कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ जाएगा. 1.9 के लिए रेड है, 1.4 के लिए wavelength will be further higher, which will be in the range of infrared. है ना, एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा लैम्डा, है ना. फॉर विजिबल रेंज एनर्जी गैप शुड बी बिटवीन 1.9 to 3 EV. 3 EV में corresponding to 3 EV you will get the wavelength around the 400. and please check your mic प्रभजोत म्यूट कर लो. या तो 3 EV के corresponding it will be what is called 400 nanometer करीब आएगा, because it is visible range के maximum will be when the energy is maximum, frequency will be maximum, wavelength will be minimum. Got it? So that's how the things will be there. And advantages क्या है इसके देखिए. LED has the following advantages. Not only LED, we can see this semiconductor which we are talking about, and solid state semiconductor बोलते हैं उनको, है ना. अभी जो ये यूज करते हैं nowadays, they are called solid state semiconductor, silicon and germanium based. So they have the following advantage, including LEDs. They need the low operation voltage and less power. कम वोल्टेज पे भी चल जाते हैं. 12 वोल्ट की बैटरी से they give sufficient light, and power consumption is less.
देखा होगा आपने, आजकल जो वेंडर्स हैं वो कई सारे बल्ब लगा के रखते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से चल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, देन यूज्ड टू नीड 220 वोल्ट, है ना। पावर कंजम्पशन was also more, and fast action is there. Immediately they will switch on. No warm up time required as it used to be in the earlier that diodes. Okay. The bandwidth of emitted light is in the range of this. We can get the 100 A0 to 500 A0, काफी कम है ये, or in the other words, it is nearly not exactly monochromatic. तो monochromatic light, close to the monochromatic light, अगर हमें सिंगल वेवलेंथ या उसके आसपास की लाइट चाहिए तो LEDs can be used, and long life and ruggedness. They are rough and tough, therefore life is long. तो ये भी मेजर एडवांटेज है, लॉन्ग लाइफ एंड रगडनेस, रफ एंड टफ, इजीली ब्रेक नहीं होंगे, है ना। जैसे पहले बल्ब, अगर एज फार एज इफ यू सी द बल्ब, ओल्ड बल्ब से थोड़ा जर्क लगता था, फिलामेंट ब्रेक हो जाते थे उसके, बट इसमें फिलामेंट नहीं होती, एलईडी है तो जर्क लगा भी तो ब्रेक नहीं होते, रफ एंड टफ है ये, एंड लाइफ देयरफॉर लाइफ इज आल्सो लॉन्ग, एंड फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, ऑन ऑफ क्विकली कर सकते हैं उसको, ऑफ करिए तो इमीडिएटली बंद हो जाते। पुराने जो डायोड थे वो हीट बेस्ड थे, इलेक्ट्रॉन लिमिट होते थे उसमें फिलामेंट से, तो ऑफ करने के बाद भी हीट उसमें रहती थी, दे कंटिन्यू देयर ऑपरेशन इवन इफ दे आर स्विच ऑफ, बट ये इमीडिएटली स्विच ऑफ हो जाते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द लाइट इमिटिंग डायोड्स, एंड उनका सिंबल ऐसे, ऐसे सिंबल दिखा सकते हैं, photons are going out, forward bias है ये, they are used in the forward bias, है ना। Can you see? Anything you want to ask in this? Or you can see in two parts, इसको ऐसे देख लो। बायसिंग हमने ऊपर दिखा, इसका जो IV ग्राफ ऊपर दिखाया है, ये सिंबल ऐसे यूज कर सकते हैं इसमें, बिकॉज इट सेंड्स द फोटोन आउट। फोटोडायोड में एरो इनवर्ट थे ना, इसमें आउटवर्ड रहेंगे। If somebody asks, write the advantages of silicon and germanium based photodiode, नहीं, silicon and germanium based semiconductor devices, तो यही लिख सकते हैं एडवांटेज पूरे। लो ऑपरेशन वोल्टेज, लेस पावर, fast action, no warm up type required. In case of LED, we can get the monochromatic light, and they are rough and tough, and fast action, on and off switching. So these are the general advantages, also not only LED, बस LED के लिए ये वाला पार्ट लिख सकते, ये इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी तो सभी में आएंगे। Moving on to the next one. Okay, this is okay. Are you there? Yes, sir. Okay, next one is next photo
photoelectronic diode is, optoelectronic diode is solar cell. Any idea about solar cell? Solar cells जो है, they are cell. It means they will produce the electricity. They will convert sunlight into solar energy into electrical energy. तो ये जो है, they will produce the electrical energy. They are cell, as good as cell. नॉर्मल जो सेल होते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, बट ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो they generate EMF. When solar energy falls on the PN junction, it works on the principle of photovoltaic effect. फोटोन से वोल्टेज बनेगा. नो एक्सटर्नल बायसिंग रिक्वायर्ड. इसमें बायसिंग कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड या रिवर्स? नो बायसिंग रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. दे आर द बैटरी इटसेल्फ. इनको बैटरी की जरूरत नहीं है. They are the battery itself. So somebody asks you how they are biased. So no biasing required because they are producing electricity. They are as good as cell. We don't need the cell for them for connection. Okay. So no biasing required. Now इसमें construction we can make this. एक मिनट थोड़ा सा. Let's go according to sequence. इसमें देखो junction area is kept large. Can you see the upper diagram? ये वाला. यहाँ पर नीचे जंक्शन है ये. तो इट इज P एंड ऊपर वाला N है. नीचे तो बैक कांटेक्ट आ जाएगा, पूरा मेटल प्लेट आ जाएगी, कंप्लीटली कवर्ड. ऊपर जो है मेटल को पूरा कंप्लीटली कवर नहीं करते बिकॉज फ्रॉम वन साइड रेडिएशन हैज टू फॉल. ठीक है. तो ऊपर पूरा कवर नहीं करते. द मेटल, ये टॉप सरफेस जो है इसमें फिंगर इलेक्ट्रोड, ये ऐसा है, ये मेटल है, ये मेटल का ऐसा फिंगर, लुक लाइक फिंगर इलेक्ट्रोड, so that radiation should enter and reach up to the junction. वहां पर they will produce for electron and hole pair. They will act as a mesotic carrier. They will be just responsible for the potential difference developed across the junction, across this diode. तो यहाँ से maximum energy, ये hardly this will be covering 15% of the top surface. 85% radiation will enter into that inside. ठीक है. इसीलिए एक साइड में पूरा क्लोज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर फिंगर इलेक्ट्रोड है, just covering very small area as possible. तो रेडिएशन शुड एंटर. ऊपर से रेडिएशन आ रहा है, देखो HNU, it should reach up to the junction. ठीक है. तो जंक्शन एरिया इज, अच्छा ये एरिया भी लार्ज है, जंक्शन एरिया इज लार्जर, ऐसा. तो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल EMF के लिए जंक्शन एरिया इज केप्ट लार्जर. नाउ कैसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए. इसमें P सिलिकॉन वेपर, नीचे का तो P है, उसको वेपर ले लिया है ना, थिन लेयर ले ली उसकी. 300 micrometer thick is taken, over which thin layer, very thin layer of 0.3 micrometer of N silicon, N type एस्टेल्जिक. इसमें क्या करेंगे, ऊपर से इसको डिफ्यूज कराएंगे पेंटावेलेंट, तो ऊपर का N हो जाएगा. इट इज थिन भी रखेंगे सो दैट रेडिएशन शुड रीच टू द जंक्शन, है ना. So very thin N layer is developed, grown on
one side by diffusion process. ऊपर से diffuse कराएंगे, ऊपर से penta, what is called pentavalent impurity atom will diffuse, है ना? इस तरह से ग्रो करते हैं उसको. इक्वल थिकनेस नहीं है इसमें, अनइक्वल थिकनेस विल डू. इसका मतलब जंक्शन थोड़ा ऊपर ही रहेगा यहाँ पर. नाउ सो दैट रेडिएशन शुड रीच टू द जंक्शन, वहां पर. नाउ यू सी द अदर डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं आप अपने उसके लिए. तो रेडिएशन इज रीचिंग टू द जंक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल बी जनरेटेड. होल विल कम दिस साइड, इलेक्ट्रॉन विल गो दिस साइड. यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव. तो ईएमएफ इज डेवलप्ड. ईएमएफ डेवलप हो जाएगा अगर इफ वी कनेक्ट द लोड हियर, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम P to N side, ऐसे current will flow. That's what is the technique here. So radiation falls near the junction, electron hole pair generates, electron go to N side, hole goes to P side, hence potential difference creates, and we can connect the load and use the electricity, this potential difference. That's what is written. Now, other side of P silicon, P-type silicon is coated with the metal. Back contact नीचे वाला ये पूरा metal रहेगा. On the top, metal finger electrode or grid is used, is deposited. It acts as a front contact, ऊपर वाला contact, top contact इधर वाला. यहाँ से कनेक्शन देने के लिए मेटल पार्ट ये रहेगा, इसमें भी ऐसे रहेगा. To take the what is called मतलब to take the current out. करंट जो डेवलप होगा यहाँ से, यहाँ पे लोड लगा, रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. सर्किट क्लोज कर देंगे, है ना. तो this already explained. Generation of electricity involves three basic processes. में पूछा जाएगा what are the three processes. इसमें थ्री प्रोसेस में क्या लिखेंगे, पहले तो जनरेट होंगे, है ना, फिर कलेक्ट होंगे, यहाँ पर आके सेपरेट होंगे, पहले जनरेट होने के बाद सेपरेट होंगे, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे. तो दीज आर द थ्री प्रोसेस. लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस. दिख रहे हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. फर्स्ट स्टेप में थ्री प्रोसेस में फर्स्ट वन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर नियर द जंक्शन ड्यू टू द लाइट. अच्छा, इसमें भी कंडीशन वही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन Eg. एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप होकर कंडक्शन उसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएंगे, है ना. तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल EH पेयर मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर. क्लोज टू द जंक्शन. पहला हो गया जनरेशन प्रोसेस. दूसरा सेपरेशन of electrons and holes due to the electric field developing electric field of depletion layer which is developed in the depletion layer. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को सेपरेट करेगी. इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग दिस साइड, होल टू द अपोजिट साइड. तो सेपरेट हो गया, सेपरेशन शुरू हो गया, फिर कलेक्शन होगा, एंड्स पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे. कलेक्शन, electrons are swept to the N side and holes on P side and are collected at front and back contacts.
है ना, जिधर फिंगर इलेक्ट्रोड होता है उसको फ्रंट कांटेक्ट बोलते हैं, वहां से रेडिएशन विल इंटर, बैक कांटेक्ट इज अदर कांटेक्ट, गिविंग राइज फोटो वोल्टेज, गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज। वोल्टेज डेवलप हुआ, फोटो वोल्टेज क्यों बोलेंगे, बिकॉज फोटोन से डेवलप हुआ, नो केमिकल आर इन्वॉल्व, no disconnected, then photo current flows in the circuit. Okay. Can you see this? छोटा दिख रहा है, इसको दो पार्ट में देखते हैं। अच्छा, इसका वीआई ग्राफ भी अभी डिस्कस करना है, एक मिनट पहले ये देख लो, दिस मच यू कैन सी। राइट, और वीआई जनरेशन ऑफ थ्री प्रोसेस हो गए। नाउ वीआई ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया, एक मिनट कहाँ तक दिखा, हियर अप टू हियर। You can skip this diagram, you can just make this one when you are asked to explain this. Pointed question will be there, according to that you write. ठीक है, और उसके बाद दिस वी आर डिस्कस, ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। ये ग्राफ जो है okay, now we can see the IV graph, current and voltage graph। तो ये कुछ अलग टाइप दिख रहा है। अभी तक हम लोगों ने कैसे देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था या थर्ड में था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसमें वाइट इज शोन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज it doesn't need the external voltage, rather it produces the voltage and current, therefore it is shown separately in the fourth quadrant। we'll see the book wording also। तो यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ पर ये voltage is called open circuit voltage। जब सर्किट जो है ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय इतना वोल्टेज रहेगा, एंड जब सर्किट क्लोज कर दिया, वोल्टेज विल ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, है ना, या फिर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। ये मैक्सिमम करंट होगा, इट विल बी शॉर्ट सर्किट। इफ यू कनेक्ट बोथ द एंड्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस छोड़ दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट विल बी मोर बिकॉज इट इज मिनिमम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन। यहाँ पे देखो, आईवी ग्राफ के बारे में देखते हैं। IV characteristics of the solar cell is drawn in the fourth quadrant of the coordinate axis. This is because a solar cell doesn't draw the current but supplies the same to the load। Draw नहीं कर रहा, ये सप्लाई कर रहा है, इसलिए उसको अलग से दिखाया, उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया गया। नॉट यूजुअल फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, it is not the forward or reverse bias, it is supplying the current shown separately, therefore shown separately, है ना। तो ये कभी कभी ये ग्राफ देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है किसके लिए। IV ग्राफ फॉर वन ऑफ द डायोड्स इज गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई, या फिर आपको सभी के दे देंगे, आइडेंटिफाई करना है कौन सा किसके लिए। इस टाइप का जो तुम्हें दिखेगा IV ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ, इट विल बी फॉर सेल। नाउ मटेरियल देख लेते हैं इसका, और
important criteria for selection of material देख लेते हैं। देखो, semiconductors with the band gap close to 1.5 are ideal material for solar cell. They are made from the silicon and gallium arsenide, है ना, 1.43, 1.1। तो 1.5 के पास पीक वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी 1.5 के पास मैक्सिमम होती है, तो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो क्लोज टू दिस शुड बी देयर। तो 1.1 एंड 1.43 इसकी क्लोज मटेरियल यही है, तो ये सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज बाकी मटेरियल्स का और कम हो जाता है या और ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है। और important criteria for selection of material is when energy gap यहाँ 1.5 पे मैक्सिमम होता है, तो इट इज 1 EV से 1.8 EV तक चलेगा, क्योंकि 1.5 पे मैक्सिमम 1.5 के आसपास सोलर एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होती है उसमें सनलाइट में। ठीक है, तो देयरफॉर ये रेंज है, तो इसके इस रेंज में आ गई ये दोनों, है ना। एंड हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन, दे शुड बी absorbing quality should be maximum। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है, अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दे शुड हैव द हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, दे शुड बी कंडक्टर, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर करंट कम फ्लो होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मिलना भी चाहिए आसानी से। According to that, cost will be there, more availability, less cost will be there, है ना। दोनों इंटर रिलेटेड है पॉइंट्स। ठीक है, एंड सोलर सेल्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट पे हम सैटेलाइट को यहाँ से सप्लाई नहीं भेज सकते, है ना। दे हैव टू बी प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द सोलर सेल ओनली, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो इसका ये भी देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट ग्राफ से उन्होंने इंडिकेट किया है 1.5 पर मैक्सिमम solar energy is available. It will not be in visible range, ये visible range में नहीं है। 1.9 EV से red visible range start होती है, but we are interested in energy, solar energy में interested है, we are not interested in the visible range। देखिए यहाँ पर ग्राफ है, देखो ये 1 से वायर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड, तो 1. सिलिकॉन का देखो 1.1 EV है, यहाँ कहीं पर 1.1 EV की जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है सन में, व्हाट इज दिस? सोलर इंटेंसिटी है इधर, सोलर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम हियर। इसका कितना है? गैलियम आर्सेनाइड का 1.4 के आसपास है, तो 1.4 विल बी समवेयर हियर। इन दिस रीजन मैक्सिमम सोलर इंटेंसिटी इज अवेलेबल, देयरफॉर दे आर सेलेक्टेड। गॉट इट? तो यहाँ कहीं पर 1.8 तक दिया उन्होंने, 1.8 विल बी कमिंग समवेयर हियर, तो यहाँ से 1 से लेकर 1.8 maximum solar intensity is available, therefore these two material falls in that range। क्या लिखेंगे? maximum solar intensity is available in this 1 to 1.8 EV में, so these materials will have energy gap in between this। got it? So this question can be follow up question, तो आपको ये आंसर लिखना है मैक्सिमम
is from 1 to 1.8 EV and इसका एनर्जी गैप इज 1.1 EV और इसका कितना लिखा था हमने, ऊपर लिखा है 1.4 3 EV 1.43 EV और तो उसकी रेंज में मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेंज में है। All right. Now last diode is Zener diode. Previously we have seen rectifier में आउटपुट पर अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है आउटपुट पर सपोज वी नीड certain voltage, we don't need the voltage to go beyond that. Suppose supply में fluctuation हो गया, alright, supply voltage जो है it is going up, but we don't want the output voltage to go up. तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए Zener diodes are used. They are the special purpose diode named after the inventor C. Zener. उसके नाम से ही है. It acts as a voltage regulator. It regulates the unregulated DC supply. DC के लिए ये जो कि रेक्टिफायर से बाहर आएगी, coming from रेक्टिफायर. पहले वहां पे यूज किया गया था, बाद में अभी बाकी सर्किट में भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं. पर्टिकुलर डिवाइस के पास हमें सपोज 2 वोल्ट चाहिए तो उसके पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं Zener डायोड, तो हमेशा 2 वोल्ट रहता है. बट इनिशियली दे वर यूज्ड टू रेगुलेट द डीसी सप्लाई, unregulated DC supply. ठीक है. It is specially designed to work in the breakdown region without getting breakdown. बाकी वोल्टेज बाकी डायोड ब्रेकडाउन हो जाएंगे ब्रेकडाउन रीजन में, but they are specially designed to work in that region. It is very heavily doped and used in the reverse bias. इसका सिंबल देखो, सिंबल ऐसा है समझ लो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे Z बना दो उसके नाम का, या आगे बनाओ, पहले एरो बना लो. नॉर्मल डायोड में से स्ट्रेट लाइन होती, बट यहाँ पे थोड़ा सा Z सिंबल टाइप हो गया. Can you see this is the diagram given in the NCERT book? Alright. और रिवर्स बायसिंग में यूज होते हैं तो उसकी बायसिंग ऐसी है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं दिखाना उसको, रिवर्स बायसिंग में ये वाला. ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है. ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या लिखते हैं अभी, एक मिनट ये हटा देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा. फॉरवर्ड बायसिंग इज नॉट टू बी शोन हियर. कैन यू सी रिवर्स बायसिंग नाउ? तो ये जो ऐसा इनिशियली थोड़ा सा बाद में करंट एकदम से बढ़ता है विदाउट, तो कहाँ पर बढ़ेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज. नाउ ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नोन एज Zener वोल्टेज, Zener वोल्टेज बोलते हैं उसको. तो वहां पर पहुंचने के बाद करंट शार्पली इंक्रीजेस. IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IV डायग्राम फॉर Zener diode. ऑलराइट, तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं और सब मेन पर्पज क्या है, टू रेगुलेट द डीसी सप्लाई. बाकी पॉइंट जो बता दिए उसको बड़ा कर देते हैं. और इसमें तो क्या होता है कि यार हेवली डोप में क्या क्या रहता है, हेवली डोप में एक मिनट पहले ये सिंबल हटा देता हूँ. हेवली डोप होने से क्या होता है देखो, thickness of depletion layer goes down. Can you see? Thickness of depletion layer is of order of 10 to the power -6. अगर हमने 5 वोल्ट लगाया उसमें डायोड में, तो V इज इक्वल टू ED वाला जो फार्मूला है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने। वहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो 5 इज इक्वल टू ई इंटू थिकनेस जो है 10⁻⁶ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 मिलियन वोल्ट पर मीटर, 5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। दिस इज वेरी हाई फील्ड। ये हाई फील्ड क्या करती है, इतनी फील्ड पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में से वो ब्रेक हो जाते हैं। मतलब दिस फील्ड विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द बॉन्ड्स कॉल्ड फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो एकदम से करंट बढ़ जाता है, शार्पली गोज अप। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड VZ इज द जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हाई फील्ड की वजह से फील्ड इमिशन प्रोड्यूस होता है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। When we cross the Zener voltage, current increases sharply. This current is due to minority carriers. Reverse bias में minority carriers, but sharply बढ़ जाता है ये. That's what we have shown here. That's what we know also. But ये breakdown, ये Zener voltage जो है breakdown नहीं होता, वो काम करता breakdown region में. बाकी वो डायोड खराब हो जाएंगे. Zener डायोड खराब नहीं होता है, उसका पर्पज ये है breakdown region में काम करना. At V is equal to VZ, applied voltage जब जीनर वोल्टेज के बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इज वेरी हाई, ये इतनी है। टू पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑन p साइड एंड विच इज एक्सिलेटेड टू n साइड, है ना, कॉल्ड फील्ड इमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फैक्ट, है ना। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाई फील्ड विल पुल एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है, तो करंट गोज अप। ठीक है, और देयर Yes. तो इसका आपको पर्पज पता होना चाहिए। इसके बाद फ्यू पॉइंट्स यू शुड नो। इनफैक्ट दिस इज एक्स्ट्रा में आ गया है ये अभी, इस बार दे आर रिमूव्ड दिस, बट वी दिस इज सिंस इट इज द लास्ट डायोड, वी आर जस्ट कवरिंग इट आल्सो। ठीक है, बट दिस इज इन योर जेई एंड ऑल तो है, नीट एंड जेई में तो है, बट बोर्ड्स में दे आर गिवन डिलीटेड दिस वन। तो अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई को रेगुलेट करता है, हेवली बायस है, रिवर्स बायस में यूज होता है ना, ये पॉइंट याद रखने का इसका। और इसका वर्किंग में ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। देखो इधर से अनरेगुलेटेड सप्लाई कमिंग फ्रॉम द रेक्टिफायर है ना, अगर ये वोल्टेज सपोज ये वोल्टेज गोज अप, तो एक्स्ट्रा जो करंट विल गो अप। वोल्टेज अगर सपोज जैसे जीनर वोल्टेज पे पहुंच गया और एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा हुआ है, सपोज जीनर, यहाँ पे देखो जीनर डायोड है, उसके पैरेलल में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोज वी दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, देयर वी वांट 50 वोल्ट, तो जीनर डायोड 50 वोल्ट का लगा दो यहाँ पर। सपोज दिस सप्लाई इज 100 वोल्ट, तो 50 वोल्ट ये सीरीज रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, है ना। सपोज दिस बिकम्स 80 वोल्ट, तो करंट विल ड्रॉप, ये जो करंट है ना ये वाला, इट विल रिड्यूस, करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर हमें जो 30 वोल्ट अभी करंट ड्रॉप हो कम, फिर ये कम ड्रॉप करेगा, जो एक्स्ट्रा 30 वोल्ट है उसका ड्रॉप करेगा, है ना। सपोज दिस वोल्टेज गोज अप बाय 150 हो गया, तो यहाँ पे तो 50 वोल्ट चाहिए, तो एक्स्ट्रा 100 वोल्ट करंट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉप होता रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा बचा है दैट विल बी ड्रॉप, करंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट, दिस सीरीज रेजिस्टेंस विल कीप ड्रॉपिंग। जितना चाहिए उतना यहाँ पर रहेगा, है ना, बिकॉज जीनर वोल्टेज होने के बाद अगर वोल्टेज आप बढ़ाना भी चाहे तो इट इज नॉट गोइंग दिस साइड, करंट इज इंक्रीजिंग नाउ, तो करंट इंक्रीज करके एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी के अंदर या सेलफोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हमें चाहिए कि 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो 2 वोल्ट का डायोड लगा दो। ये बैटरी सपोज 10 वोल्ट की है, डजंट मैटर, तो एक्स्ट्रा जो 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, दैट्स ऑल। वहाँ पे
अनरेगुलेट नहीं हो रहा है, सप्लाई इज नॉट गेटिंग अनरेगुलेट, बट वी नीड 2 volt only, always 2 volt. But initially it was designed for getting the regulated supply from where? From the rectifier. So that's how it works. And बाकी इसकी questions जो आते हैं, particularly now they will be asked in only JEE and NEET. एक क्वेश्चन करके then we'll wind up. देखो ये क्वेश्चन है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड हियर, ये 120 वोल्ट की बैटरी है और ये जेनर डायोड 50 वोल्ट का लगा हुआ है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस को 50 वोल्ट चाहिए, एक्स्ट्रा वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड शोन इन द सर्किट, आल्सो फाइंड द पावर इन डायोड। इसमें करंट कितना जाएगा वो निकालना, आई जेड, इसका सिंबल आई एल ले लेंगे, लोड रेजिस्टेंस का। तो आई जेड निकालना है और पावर करंट मिल गया तो पी इज इक्वल टू वी आई से पावर मिल जाएगी, वोल्टेज तो दिया ही है, करंट मिल जाएगा तो पावर मिल जाएगी। करंट कैसे मिलेगा ये, हाउ टू गेट द करंट हियर? तो बेसिक ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से देखो ये 120 वोल्ट है और ये 50 है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? 70 वोल्ट। गेटिंग ऑन नॉट? 120 में से 70 यहाँ पे ड्रॉप कराना, तो यहाँ से करंट मिल जाएगा, आई विल बी V70 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5000, 10⁻³ ऊपर भेज देंगे, 14 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 50 वोल्ट है तो इसको भी 50 वोल्ट मिलेगा, यहाँ का करंट भी मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस का 50/10, तो 5 मिली एम्पियर यहाँ आ जाएगा। तो 14 यहाँ से आया, 5 इसमें चला गया तो बाकी इसमें आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। ओम्स लॉ एंड सिंपल किरचॉफ लॉ है ना, कितना करंट इसमें आया तो कितना उसमें जाएगा ना। तो देखो, कैन यू सी? तो वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ डिस्कस के लिए, अगर ये 50 है तो बाकी यहाँ पे ड्रॉप होना है 70, ठीक है, 70 ड्रॉप हो जाएगा वो सीरीज रेजिस्टेंस में, है ना? तो सीरीज रेजिस्टेंस में करंट निकाल लो, 70 अपॉन इट्स रेजिस्टेंस, किलो में दिया ना, तो इसलिए 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे, तो 14 मिली एम्पियर। लोड रेजिस्टेंस निकाल लिया, लोड करंट निकाल लिया, आई आर, तो उसका वोल्टेज देखो यहाँ पे 50 है तो इसको 50 हमेशा मिलेगा, दैट्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायोड, जेनर डायोड, है ना? यहाँ पे 50 मिलेगा इसको, तो 50 अपॉन इट्स रेजिस्टेंस 10 किलो, 10⁻³ है ना, तो 5 मिली बन जाए, 5 मिली रहेगा वो। तो बाकी किधर जाएगा? किरचॉफ लॉ से 14 आया इधर, 5 इसमें गया तो 9 इसमें आ जाएगा। करंट कमिंग डाउन इज कमिंग इन द जेनर डायोड इज 9 मिली एम्पियर, है ना, तो पावर विल बी P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज 50 है, करंट 9 मिली एम्पियर है, तो 0.45 watt really the power produced in the what is called Zener diode, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस, किरचॉफ लॉ एंड ओम्स लॉ। किसी में किसी को डाउट है इसमें, पर्टिकुलरली दोज हु आर गोइंग फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम? बोर्ड में ये नहीं आएगा बिकॉज दे आर डिलीटेड this diode only this one diode is deleted. Tomorrow onward we can start the revision of EM wave. EM wave में लास्ट के टॉपिक नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह नहीं है, और लास्ट का जो है, और ऑप्टिक्स में भी प्लेन मिरर इज नॉट देयर, तो EM wave will be done tomorrow itself, एंड प्लेन मिरर छोड़ के हम लोग रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स। गॉट इट? एंड फर्स्ट 3 days we'll have the JEE अपना revision, Monday, Tuesday and Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday we'll have the JEE classes. Got it? Yes, sir. Okay.
But this Thursday, Friday, Saturday, I'm not available. Therefore, physics class will be not there. But next week onwards, first 3 days revision, next 3 days J classes, like that will go on. ठीक है, तो this is over. In fact, ये वाला एक just